یہ کہانی ہے ایک تاجر کی جو دولت کے پیچھے بھاگا، لیکن منزل اسے وہاں ملی جہاں وہ کبھی سوچ بھی نہ سکا۔ قدیم زمانے کی بات ہے، یمن کے کسی شہر میں اسامہ بن ابراہیم نامی شخص رہتا تھا جو یمن کے ایک بڑے بازار میں تجارت کرتا تھا۔ اسامہ کے والد کا نام ابراہیم بن یوسف تھا، جو ایک ایماندار تاجر تھے اور ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتے، بیٹا، تجارت میں نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کے پیچھے مت بھاگو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہارے حصے کا رزق پہنچا دے گا۔ مگر اسامہ کا دل کمزور تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ حقیقت میں دولت وہی کماتا ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ آخری لمحے بھی اسامہ کو یہی نصیحت کر رہا تھا، بیٹا، دنیا کی حقیقت دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اگر اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے۔ اسامہ نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دنیا داری میں ڈوب چکا تھا۔ اسامہ اپنے والد کے کاروبار کا اکلوتا وارث تھا۔ یمن کے سب سے بڑے بازار میں اس کی عطر اور قیمتی کپڑوں کی تجارت تھی۔ وہ بہت ذہین تھا مگر بے حد خود غرض بھی۔ اس کے خیال میں دولت ایمانداری سے نہیں بلکہ چالاکی سے کمائی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے وہی طریقے اپنانا شروع کر دیے جو دولت مند مگر بے ایمان تاجر اپناتے ہیں۔ خالص سنتر میں ملاوٹ کرنا، کم قیمت کپڑوں کو بیش قیمت ظاہر کر کے بیچنا اور غریب گاہکوں کو دھوکہ دینا اس کا معمول بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا کاروبار خوب پھیلنے لگا، مگر اس کے دل کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، آخر مجھے اتنی دولت کیوں چاہیے اور میں پھر بھی مطمئن کیوں نہیں ہوں؟ لیکن وہ فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیتا۔ ایک رات جب وہ اپنے تجارتی معاملات نمٹا کر دکان بند کر رہا تھا، بازار تقریباً سنسان ہو چکا تھا۔ اچانک ایک بوڑھا بزرگ اس کے قریب آیا۔ اس کی حالت بہت خستہ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھوں میں بھوک کی شدت نمایاں تھی۔ بوڑھے نے کپکپاتی آواز میں کہا، بیٹا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اسامہ کو ایسے بھکاری اکثر نظر آتے تھے اور وہ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ غصے سے بولا، جاؤ بابا، محنت کرو، مانگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ بوڑھا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، بیٹا، میں مانگنے والا نہیں تھا، لیکن تقدیر نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اسامہ نے ناگواری سے ایک معمولی سا سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ گھر جا کر سو گیا۔ اس رات اسامہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ وہ خود کو ایک ویران صحرا میں دیکھتا ہے جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اچانک وہی بوڑھا شخص اس کے سامنے آتا ہے، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک ہوتی ہے۔ وہ بوڑھا مسکرا کر کہتا ہے، بیٹا، تم نے دنیا کے بھروسے مجھے ٹھکرا دیا، لیکن یاد رکھو، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ پھر اچانک بوڑھا نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور اسامہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اس خواب کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، اگلے دن جیسے ہی وہ دکان پر پہنچا، کچھ لوگ گھبرائے ہوئے اس کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسامہ بن ابراہیم، تمہاری دکان میں رات کو چوری ہو گئی ہے۔ اسامہ کا رنگ الفاڑ گیا اور وہ دوڑ کر اپنی دکان کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی۔ قیمتی عطر، کپڑے، سونا، سب لوٹ لیا گیا تھا۔ اس کا سارا سرمایہ ایک رات میں ختم ہو چکا تھا۔ اسامہ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، سوائے اس نصیحت کے جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے کی تھی۔ اسامہ بن ابراہیم اپنی لوٹی ہوئی دکان کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، غصہ اور بے بسی تھی۔ کل تک جو شخص بازار کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا، آج وہ ایک مفلس کی طرح کھڑا تھا۔ اسامہ نے ادھر الفادر نظر دوڑائی، شاید کوئی اسے تسلی دے، کوئی اس کے نقصان کا بدلہ دلانے میں مدد کرے، مگر ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا۔ ایک ہمسایہ تاجر اس کے قریب آ کر کہنے لگا، افسوس ہے اسامہ، لیکن یہ دنیا ایسی ہی ہے، دولت آتی جاتی رہتی ہے، تم پھر سے کما لوگے۔ اسامہ نے زخمی لہجے میں کہا، لیکن سب کچھ تو ختم ہو گیا، میں کہاں سے شروع کروں؟
ताजिर ने कंधे उचकाए और चल दिया। किसी को इसके हाल से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो मायूस होकर घर पहुंचा। इसका घर बड़ा था, मगर अब इसे लग रहा था कि ये महल जैसा मकान भी जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। इसके पास जो थोड़ा बहुत सोना बचा था, वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। अगली सुबह उसामा ने सोचा कि शायद कोई रास्ता निकल आए। वो मायूसी के आलम में बगैर किसी समत के चलने लगा। बेख्याली में इसके कदम उसी गिल्ली में जा पहुंचे जहां कल रात वो बूढ़ा शख्स मिला था। और हैरत की बात ये थी कि वही बूढ़ा आज भी वहीं बैठा था, मगर अब वो पहले से ज्यादा पुरसुकून नजर आ रहा था। बूढ़ा उसामा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेटा, आज तुम्हारी हालत भी कुछ वैसी ही है जैसी कल मेरी थी। उसामा ने गुस्से से कहा, ये सब कुछ एक दिन में कैसे बदल गया? मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी और एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। बूढ़े ने सर हिलाया और नरमी से कहा, तुम्हें अपनी मेहनत और दौलत पर बहुत भरोसा था और अल्लाह पर नहीं। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो तुमने किसी को कुछ ना दिया। आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो तुम खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रहे हो। अब अगर तुम वाकई कुछ पाना चाहते हो तो शहर के बाहर एक पुरानी काटिया में आकर मुझे मिलो। उसामा ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से चल दिया, मगर इसका दिल बेचैन था। एक तरफ इसका गुरूर था जो कह रहा था, मैं क्यों इस बूढ़े फकीर के पास जाऊं, आखिर वो मेरे लिए क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ इसकी बेबसी थी जो सरगोशी कर रही थी, तुम्हारे पास खोने को बचा ही किया है। शायद इसके पास कोई ऐसा राज हो जो तुम्हें संभलने में मदद दे सके। रात भर वो बेचैन रहा और आखिरकार अगली सुबह इसने फैसला कर लिया कि वो बूढ़े से मिलेगा। उसामा शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी काटिया में पहुंच गया। इस काटिया के अंदर वही बूढ़ा बैठा था। उसामा जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, बिलाखिर तुम्हें समझ आ ही गई कि सब कुछ हाथों से निकल जाने के बाद इंसान सीखने के लिए तैयार होता है। उसामा ने झुनझला कर कहा, बस ये फलसफे छोड़ो और सच बताओ, क्या तुम्हें मालूम था कि मेरी दुकान लुटने वाली है? क्या तुम्हें पहले से कोई इशारा मिला था? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं, मगर पहले वदा करो कि सब्र और यकीन रखोगे। उसामा ने सर हिलाया। बूढ़े ने राजदारी से कहा, तुम्हें याद है, तुम्हारे वालिद हमेशा कहा करते थे कि अल्लाह पर भरोसा करो। तुमने कभी सोचा है कि वो इतने कामयाब क्यों थे? उसामा ने चौंक कर कहा, हाँ, मेरे वालिद एक ईमानदार ताजिर थे, मगर इसका मेरे हालिया नुकसान से क्या ताल्लुक? बूढ़े ने नजरें आसमान की तरफ उठाईं और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे वालिद की कामयाबी की एक वजह यह भी थी कि वो अपनी कमाई में से खुफिया तौर पर गरीबों की मदद किया करते थे। वो जानते थे कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में दूसरों का भी हिस्सा होता है, इसीलिए वो जितना अल्लाह की राह में खर्च करते थे, अल्लाह उन्हें बेहिसाब रिस्क देता था। और ये भी जान लो कि तुम्हारी आजमाइश सिर्फ इसलिए आई है कि तुम्हें भटके हुए रास्ते से वापस लाया जा सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता सकता हूं जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। उसामा हैरानी से बोला, कौन सा राज? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, यही तो तुम्हें खुद तलाश करना होगा। उसामा अलिफालझन में था। ये कौन सा राज है और मैं इसे कैसे तलाश करूं? बूढ़ा मुस्करा कर बोला, बेटा, दुनिया के सबसे बड़े राज हमेशा सीधे नहीं बताए जाते। उन्हें तलाश करना पड़ता है, और तलाश तभी कामयाब होती है जब नीयत दुरुस्त हो। मैं जानता हूं तुम्हारी किस्मत एक खजाने के राज से जड़ी है, लेकिन वो खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम आजमाइशों से गुजरने के लिए तैयार हो। उसामा हैरत से बोला, क्या वाकई कोई खजाना मौजूद है? बूढ़ा शख्स हंसा। खजाने कई किस्म के होते हैं, कुछ सोने चांदी के और कुछ इल्म व मरिफत के। तुम्हें कौन सा चाहिए? उसामा फौरन बोला, जाहिर है सोने चांदी का। बूढ़े ने सर हिलाया। तब तुम्हें सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा करना होगा। अगर तुम सच्चे दिल से सफर पर निकलोगे तो वो खजाना तुम्हें मिल जाएगा, मगर याद रखो, ये कोई आसान रास्ता नहीं होगा। उसामा की जिंदगी एक मोड़ पर आ चुकी थी। कल तक जो शख्स यमन के मशहूर ताजिरों में शुमार होता था,
आज वो खजाने की तलाश में एक पुरअसरार सफर पर निकलने वाला था। यमन के बाहर एक बड़ा काफिला सफर के लिए तैयार था। ये काफिला सहरा पार करके शाम जा रहा था और उसामा ने सोचा कि वो उनके साथ जा सकता है। काफिले के साथ वो बुजुर्ग भी थे जिनके साथ उसामा ने सफर करना था। बुजुर्ग ने एक बार फिर उसामा से कहा, याद रखना ये सफर आसान नहीं होगा, खास तौर पर अगर तुम्हारा दिल कमजोर है। क्या तुम तैयार हो? उसामा ने सर हिलाकर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पहले दिन का सफर काफी सख्त था, लेकिन असल आजमाइश रात को आई। अंधेरी रात में तेज हवाएं चलने लगे। रेत का तूफान काफिले को हिलाकर रख देने लगा। ऊंट बेचैन हो गए, कुछ लोग खौफजदा हो गए और कुछ ने वापसी का सोचना शुरू कर दिया। उसामा खुद भी खौफजदा था, मगर फिर इसे बूढ़े की बात याद आई। अल्लाह पर भरोसा रखो, आजमाइशें आएंगी मगर वही तुम्हें मजबूत करेंगी। मुसाफिर अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप कर बमुश्किल खड़े थे। हवाएं इतनी तेज थीं कि लगता था जैसे वो सबको आड़ा कर कहीं दूर ले जाएंगी। उसामा बिन इब्राहिम खौफजदा हो गया, वो कभी ऐसी सूरत-ए-हाल से नहीं गुजरा था। इसने बूढ़े की तरफ देखा, जो मुकम्मल सुकून के साथ काफिले को संभाल रहे थे। इसने पूछा, शेख, हमें क्या करना चाहिए? ये तूफान हमें खत्म कर देगा। बूढ़े ने मुस्करा कर जवाब दिया, बेटा, ये सहरा है, यहाँ आजमाइशें अचानक आती हैं, मगर वही कामयाब होता है जो सब्र और हौसला रखे। तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। काफिले के कुछ ऊंट आजाद होकर भागने लगे और कुछ अफराद रास्ते से बिछड़ गए। अचानक एक जोरदार तूफानी झोंका आया, रेत ने हर चीज को ढांप लिया। उसामा को लगा कि वो खो गया है। इसके ज़हन में एक ख्याल आया, अगर मैं अल्लाह से मदद मांगूं तो शायद वो मेरी रहनुमाई करे। यही वो लम्हा था जब इसके दिल में पहली बार एक सच्चा यकीन पैदा हुआ। इसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर तो वाकई मौजूद है तो मुझे इस मुसीबत से बचा ले। चंद लम्हों बाद तूफान अचानक कमजोर पड़ने लगा। हवाएं मध्यम हुईं और आसमान साफ होने लगा। उसामा ने हैरत से चारों तरफ देखा। इस बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, देखा, अल्लाह अपने ऊपर भरोसा रखने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। याद रखो, खजाना वही पाता है जो इसकी सच्चाई को समझ सके, और ये तुम्हें सिखाएगा कि सोना ही वाहिद खजाना नहीं होता जो इंसान तलाश करता है, बल्कि खजाना वो भी होता है जो इंसान को खुद को दरियाफ्त करने में मदद दे। उसामा बिन इब्राहिम के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। वो पहले सिर्फ दौलत की तलाश में निकला था, मगर अब इसे महसूस हो रहा था कि ये सफ़र सिर्फ खजाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ और ही राज खिलने वाले हैं। चलते चलते एक दिन बाद काफिला एक कुनवे के पास रुका तो बुजुर्ग ने उसामा को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे सफ़र की सबसे अहम घड़ी करीब आ रही है। याद रखो, तुम्हें वही चीज़ मिलेगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। उसामा ने हैरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि खजाना कहाँ है? बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वाकई जरूरत है, न कि वो जिसकी तुम सिर्फ ख्वाहिश रखते हो। ये अल्फाज उसामा के दिल में गूंजने लगे। काफिले का एक शख्स घबराया हुआ वापस आया और कहने लगा, मैंने शुमाल की तरफ एक अजीब सी रोशनी देखी है, ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ दफन है। उसामा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही जगह है जहां खजाना दफन है? बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये खतरनाक हो सकता है, मगर जो जाना चाहे जा सकता है। उसामा ने फौरन जाने का फैसला कर लिया। 2 और अफराद इसके साथ हो लिए। वो तीनों ऊंटों पर सवार होकर शुमाल की तरफ बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक अजीब सी जगह नजर आई। रेत कुछ उल्टी हुई थी, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। वो तीनों वहां गए। उनमें से एक को सोने की थैली मिली, दूसरे को चांदी के जेवरात, जबकि उसामा को एक पुराना सा पत्थर मिला जो इसके हाथ आया, जिस पर कुछ इबारत कुनिंदा थी। उसामा ने नीचे झुककर इसे गौर से पढ़ा। जो सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे, वही असल खजाने का हकदार होता है। उसामा के दिल में हलचल पैदा हो गई।
किया जिस खजाने की तलाश में मैं निकला था वो यही एक तहरीर थी जो एक पत्थर पर लिखी हुई है। क्या वाकई ये वो खजाना है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? उसामा को ऐसा लगने लगा जैसे इसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम राज दरियाफ्त कर लिया हो। खजाना सिर्फ सोना और चांदी नहीं था, बल्कि वो कुछ और था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसामा ने बुजुर्ग की तरफ मुड़कर कहा, ये किया है? क्या ये खजाना मुझे दौलत देगा? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने हमेशा खजाने को सोने और चांदी में तलाश किया, मगर असल खजाना सब्र और अल्लाह पर भरोसे का है। दौलत का असल मकसद लोगों की मदद करना है। जो शख्स सिर्फ अपने लिए दौलत जमा करता है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन जो अपनी दौलत से दूसरों की जिंदगी बदलता है वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। और यही चीज तुम्हारे वालिद को भी कामयाब बनाती थी। उसामा ये बात समझ चुका था कि अगर इसके हाथ में सोने की थैली भी आती तो वो इससे कारोबार करता, और इस कारोबार से शायद वो एक बार फिर अमीर हो जाता, लेकिन सब्र और अल्लाह पर भरोसे की दौलत से वो कभी मालामाल ना होता और इसे दिल का सुकून भी मुयस्सर ना आता। उसामा की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई थी। इसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि इसे जिस चीज की जरूरत थी वो इसे मिल चुकी है। बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, यही वो राज है जिसका तुम्हें जानना बेहद जरूरी था। तुमने जो सबसे बड़ी दौलत समझी थी वो महज वक्त था। उसामा फौरन यमन वापस आया और इसने एक बार फिर दुकान किराए पर लेकर कारोबार शुरू किया। वो दिन भर में जितना भी कमाता इसमें से कुछ अपना हिस्सा रखकर बाकी गरीबों में बांट देता। कुछ अरसे बाद इसने महसूस किया कि इतना कुछ बांटने के बावजूद इसके रिस्क में कमी नहीं आ रही, बल्कि वो दिन बा दिन अमीर होता जा रहा है और इसके पास एक दफा फिर पहले से भी ज्यादा रुपए पैसे की फरावानी हो गई है। लेकिन इसने फिर भी हाथ ना रोका और वो गरीबों की मदद करता गया। इसने तिजारत में भी ईमानदारी अपनाई और अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। उसामा बिन इब्राहिम का नाम यमन के एक नेक दिल ताजिर और इंसान दोस्त के तौर पर जाना जाने लगा। इसने अपनी दौलत से शहर के कई गरीबों की जिंदगी बदल दी थी। लोग इसकी इज्जत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि असल खजाना दौलत में नहीं, नियत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में छुपा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल कामयाबी सिर्फ माल और दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि इस दौलत को नेकी, मोहब्बत और खिदमत खुल्क के लिए इस्तेमाल करने में है। जिंदगी की आजमाइशें हमें गिराने नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। जो इंसान मुश्किलात में भी सब्र का दामन थामे रखता है और अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है वही अंदरूनी सुकून और हकीकी कामयाबी पाता है। ये कहानी याद दिलाती है कि वक्त सबसे कीमती खजाना है और वही शख्स इस दुनिया में कुछ पा लेता है जो अपनी दौलत, वक्त और सलाहियतों को दूसरों के लिए वक्फ करता है। क्योंकि दौलत बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और सबसे बढ़कर दिल की खुशी और रूह का सुकून वो इनाम है जो सिर्फ सच्ची नीयत और ईमान से हासिल होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आसी लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।